So good morning all of you. Good morning, madam. Today you have to adjust in my bad handwriting because my hand is not working. Yes. Today's date is 29 ना? Yes. तो हैंडराइटिंग बहुत गलत आने वाले हैं खराब, लेकिन अभी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. फ्रैक्शन. Okay? So we had learned about the fraction on day before yesterday in our regular class, and today we are going to understand the fractions on the number 9. The proper fraction fraction on a number 9. on a number 9. ठीक है? Now, what had pay your attention here? How to show the fraction on the number 9? Yes. This is also little bit thing I suppose you understand. Easy. You learned in the previous class. But first of all, let us try to understand how to represent the fraction on the number 9. For that, let me take one example. Suppose I take a fraction 3 upon 5. like suppose 5 upon 8. 8. So here, as we learn what is fraction, so fraction shows us the equal part of any object or distance. The equal word is very important whenever we talk about fraction, है ना? तो equal, तो यहाँ पे the example which I have taken 5 upon 8. In this, how many equal parts are there? 8 equal parts, and 5 part means fifth part out of 8 that this fraction is representing. So whenever we resolve it, fraction is shows us the division. Equal part means part पढ़ते हैं जब भी तो उसको division बोलते हैं कि these many divisions are there. So अगर मैं divide करूँगी 5 को मैं divide करूँ 8 से, so 5 is smaller than 8. 5 is smaller than 8. So we could not divide it easily. जिन्होंने क्वेश्चन कॉपी नहीं किए हैं वो अभी नहीं लिखे. Pay your attention to me. Many students are writing the questions. ठीक है, तो यहाँ पे 5 is not divisible by 8 because 5 is smaller than 8. So what to do? We have to add 0 here. But to add 0 over here, we have to write 0 in the quotient terms. Then we have to put decimal point here. Okay, and then we can divide it. So in 8th table, 8th table, we get the 8 6 are 48. 8 6 are 48. So remainder is 2. Then vice versa it will be carry on. But the answer quotient comes over here which is 0.6. 0.6 means what? 0.6 is less than 1. Okay, agree? Yes. Which is 0.6 is less than 1. Clear हो सारे? कैसे वो 1 से small है? Because decimal fraction आप पढ़ के आए हो. Yes. पढ़े हो decimal fraction. तो अगर डेसिमल पॉइंट के आगे 0 है तो वो फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 1 होता है. अगर ये होल पार्ट में यहाँ पे में 1 है या 1 से बड़ा कोई नंबर है तब भी वो ग्रेटर देन 1. बट अगर डेसिमल पॉइंट के आगे जो होल पार्ट हमको दिखाई दे रहा है वो अगर 0 है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 से कम आएगी. दैट इज लेस देन 1. बट तो ये लेस देन 1 वाली जो बात है माने वो कहाँ पे आई? तो ये ऐसे एग्जांपल में, ये एग्जांपल में व्हाट इज दैट? तो वी नो दैट इन फ्रैक्शन टू थिंग्स आर दैट. वन इज न्यूमरेटर एंड सेकंड इज डिनोमिनेटर. और यहाँ पे आप देखो तो जो न्यूमरेटर है दैट इज स्मॉलर than denominator. तो when what is the condition for the proper, I am talking about proper fraction now, we are moving ahead on that.
So what is the example of these? One fraction I have taken which is 5 upon 8, where 5 is smaller than 8. Yes. Means numerator is smaller than denominator. If this type of fraction is there and we resolve it with the division, simple division, we get it quotient less than 1. 1. So second condition. Naman. Second condition. First is numerator is smaller than denominator. And the second condition is the by resolving this division we get its value less than 1. ओके सो अगर ऐसी कंडीशन जहाँ पे है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. और उसको प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर एंड इट्स वैल्यू ऑलवेज कम्स लेस देन 1. Okay, now we are learning fractions on a number 9. तो fraction number 9 पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मुझे यही fraction सपोज रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आई? लेस देन 1 आई. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैडम कैसे बोल रहे हैं कि लेस देन 1? Yes. यू गेट इट? Yes. लेस देन 1 कैसे आया? समझ में आया Yes. सभी को? Yes. Do you have doubt over here? No. No? ओके मानिए ये जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आई 0.6 मींस इट कैन बी प्रेजेंटेड बिटवीन 0 एंड 1. गॉट इट? तो Yes. कहाँ पे आएगा? 0 से थोड़ा and 1 डिस्टेंस के पे 1 बीच में. में आएगा. ठीक है. Yes. नाउ एट विच प्लेस इट विल कम? तो द बेसिक फ्रैक्शन इज 5 upon 8. Yes. So how many equal parts we have to do? 8 इक्वल पार्ट्स. तो ये जो डिस्टेंस है उसे मुझे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 And ये 8. होगा. Yes. Got it? 8 equal parts I have to divide it because the denominator is 8. 8. Why I have divided into equal 8 parts? Because the Denominator denominator is is 8. 8. And now we have to represent 5 upon 8. So how many parts we have to take? 5 out of 8. So 5 parts we have to take. 1, 2, 3, 4 and 5. So this is representing the fraction 5 upon 8. Got it? कोई और एग्जाम्पल ले ले. सपोज मैं लेती हूँ एक और एग्जाम्पल ले ले हम 9 upon 11. Okay. Over here also numerator is smaller than denominator. ठीक है? So its value also will be less than 1. जिनको समझ में नहीं आए वो इस तरह से सिंपल डिवीजन भी कर सकता है. तो ये भी जो है 9 जो है लेस देन 11 है, नॉट डिविजिबल बाय 11. So we have to divide it with the decimal number and to add 0 over here we have to put 0. 88 2 will be the remainder. So answer क्या आया? 0.8 which is less than 1. So this also will come between 0 and 1. Again, how many equal parts we have to do? 11 equal parts. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. And which position we have to take? 9th position. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So this fraction will come at this place which is 9 upon 11. Clear ho? How to represent fraction on the number 9. And for that, first of all, we are learning the representation of proper fraction on the number 9. Proper fraction condition क्या है? What is the condition of proper fraction? Numerator is always smaller than the denominator. Then those type of fraction is known as Proper fraction. And value of proper fraction is always comes less than 1.
and if it is less than 1, then on the number line it represents between 0 to 1. And how to represent it? So whatever the denominator digit is there, in that those many parts we have to divide the distance, and then whatever the numerator is there, at that position you have to show the point on the number line. Clear हो? समझ में आया सबको? चलो, so let us solve the try these of page number 137. I told you to copy the questions in the notebook. Yes, we already लिख दिया. चलो, 3/5. How will you represent 3/5? First of all, what to check? Numerator and denominator. तो numerator क्या है? 3 है and denominator. So numerator is smaller than denominator. ये कंडीशन पहले फुलफिल होती है कि नहीं, that you have to check. If it is there, then आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. 3/5 को हमें शो करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो. 0 लो, 1 लो. How many total parts of the distance we have to do? 5. But keep it in your mind, these parts must be equal in distance. Distance में क्या होने चाहिए? Equal होने चाहिए. ठीक है? तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करो. 1, 2, 3, 4 and 5. And what is the fraction basically? 3/5. So which position? Third position. 3/5 के लिए 1, 2 and 3. तो ये hमें रिप्रेजेंट करता है 3/5. टोटल इक्वल पार्ट्स 5 करो, and the third one point represents 3/5. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको more than one fraction is given and those many fractions you have to show on the number line. Now tell me, all these fractions we can show on the same number line or not? Yes, we can. Why? Because in all the fractions denominators are same है, इसीलिए. क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 10 है, तो हमें उसको डिवाइड तो 10 में ही करना है ना, हर एक जगह पे 10 है. तो ये डिस्टेंस लेके उसको 10 इक्वल पार्ट में आप पहले डिवाइड कर दो. पार्ट्स इक्वल होने चाहिए. कीप इट इन योर माइंड. चलो भाई, दोनों क्या कर रहे हो? बातें करने के लिए ऐसे देख लो क्या? फिर क्यों आप कुछ लाए नहीं आज? रूलर, पेंसिल. अब यहाँ पे हमको 1/10, 0/10, 5/10 and 10/10. 1/10 मानी ये वाला. ठीक है, ये पॉइंट हो गया. समझ में नहीं आया एरो दिखा सकते हो. 0/10 ये हो गया. 5/10, 1, 2, 3, 4 and 5. यहाँ पे 5/10 and 10/10. देखो 10/10 कहाँ पे आया? 1 पे आया. 10/10 कहाँ पे आया? 1. मीन्स अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम तो वैल्यू क्या हो जाती है? सेम. 1.
If numerator and denominator are same, then its value becomes 1. क्या कर रहे हो सब लोग? If numerator and denominator are same, then its value becomes 1. And if the numerator is 0, then its value is 0. Numerator 0 है तो वो हमेशा 0 पोजीशन पे ही आता है। And numerator and denominator same है तो वो हमेशा 1 पे ही आता है। यहाँ पे each and every fraction has denominator same 10, 10, 10, 10, and that's why we represented all these digits on the same number line. नहीं तो हमको अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी डिनोमिनेटर में नंबर है उतने हमें पार्ट बनाने हैं डिस्टेंस के। व्हाट इट? चलो, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 and 1? राइट 5 more fractions that you can show and depict them on the number line. You can take according to your own wish also. But 10 नहीं लेना, हमने यहाँ पे कर लिया है। 5 नहीं लेना, हमने यहाँ पे कर लिया। Besides 5 and 10, आप कुछ भी लो। 6 आप अपने हिसाब से लो। 3/6 5 लेने हैं कितने? 5। 3/6 7/6 8/6 9/6 4/6 डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना मैम? या हाँ तो 3/6 4/6 5/6 आप अलग अलग भी ले सकते हो, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू ड्रॉ द सेपरेट नंबर लाइन। If you want to show it on the same number line, then take it same. You can take it your own choice also. I took it 13. Denominator 13 ले लिया मैंने, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। सबका हो गया? बहुत नजदीक नजदीक नहीं लेना, नहीं तो आप रिप्रेजेंट करोगे पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से डिस्टेंस रख के लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हो गया मैम। that is given that how many fractions lie between 0 and 1? Think, discuss and write your answer. So 0 to 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस हो सकते हैं सोचो। 10 Only 10? माने कितने? Can we count it? No, infinite. Infinite. We could not count it. So endless है. So what is the answer? There are infinite fractions lie between 0 to 1. Write down the answer. There are infinite fractions lie between 0 and 1. Clear हो गया सबको? How to represent a fraction on number line, that is clear?
Do you have doubt, anybody? Just now we had learned to represent proper fraction only. Which fraction? Proper fraction. या proper fraction को कैसे represent करते हैं वही हम पढ़े. और which fraction known as proper fraction? जिसके अंदर न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, डिनोमिनेटर ग्रेटर. Numerator is smaller and that fraction is known as प्रॉपर फ्रैक्शन. proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर स्मॉलर देन. चलो अभी next write this which also I told you to copy in the notebook. क्योंकि मैंने आपको कॉपी करने को बोला था. आपको तो घर में जाके स्कूल याद ही नहीं रहती तो भूल ही जाते हो हर रोज. स्कूल को कौन याद करे घर में जाके? ना याद तो आती है. रिसेस की भी आती है. सिर्फ कैंटीन याद आती होगी बाकी कुछ हाँ नहीं. यस. टीचर तो याद आते नहीं, सब्जेक्ट तो याद आते नहीं आपको. आते 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 होमवर्क के टाइम. चलो नेक्स्ट गिव प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन लिखो यहाँ पे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे ही दिया है तो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर. 5/7. 5/7. चलो कंप्लीट करो. 5/7 आता है पहला एक तो बोल लो. नहीं देखो ना. चलो वी आर लर्निंग करेक्टली. राइट दिस of page number 138. Whose numerator is 5 and denominator is 7? So answer A. 5/7. Numerator is 5 and denominator is 7. Answer B. Denominator is 9 and numerator is 5. ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वर्ड बराबर समझ के लिखना. हाँ अभी यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर दिया उन्होंने? डिनोमिनेटर पहले दिया, न्यूमरेटर बाद में दिया. तो आंसर इज 5/9. Up to 10 क्या होगा? अप टू 10 मानिए 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, अप टू 10 जाना है. बराबर. 0 से शुरू करेंगे. 0/1. मानिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बात दिए हैं. न्यूमरेटर अप टू 10 एंड डिनोमिनेटर अप टू 10. तो 0/1 0/2 करते जाएंगे 10 टाइम्स. 0 to 10. फिर 1 का आएगा, फिर 2 का आएगा. ऐसे करना है. तो ऐसे ही जाएंगे ना. तो कितने आएंगे? 10 टाइम्स आएंगे. न्यूमरेटर 10 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर भी 10 हो जाएंगे. तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 ओनली. नहीं 40 ओनली. इनफाइनाइट नहीं 100 कितने आएंगे? 100. हाउ इट कम्स 100? 10 टाइम्स आएंगे ना. So 10 टाइम्स इस तरह से 0 to 10, इस तरफ 0 to 10, तो वो कितने हो गए? 100. ये अगर समझ में नहीं आते हैं तो पूरे बनाओ, नहीं तो आप लिख सकते हो कि टोटल 100 फ्रैक्शंस कैन बी. ऐसे क्वेश्चन पूछा है ना.
we can make 100 fractions by adding numerator and denominator up to 10. I'm not damn sure, but we have to check this answer once again. यही आएगा कि नहीं? अभी तो यही लगता है. ये ऐसे ही लिखिए ना. पीछे थोड़ी ना गाइड इसके आंसर होंगे. मतलब एक्टिविटी गोल्डन में देते हैं. चलो हो गया. Write down the answer. We can make ये क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे. We can make 100 fractions by adding numerator and denominator up to. Then teacher we can make fractions numerator or denominator by 10. up to 10. We can make 100 fractions by adding By adding 10. numerator and denominator denominator up to 10. 10. Denominator is for more Sure. than D. Whose denominator is 4 than numerator. So 5/4. 5/4 आएगा. More than numerator. What is given that numerator जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए. नहीं. अरे 4 से more than 4. न्यूमरेटर जो है ना डिनोमिनेटर से 4 लेस है. या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर जो है दैट इज 4 मोर मानी ग्रेटर देन न्यूमरेटर. अभी कितना बड़ा है? तो डिनोमिनेटर जो है दैट इज 4 मोर देन न्यूमरेटर. ऐसे 5 आपको बनाने हैं फ्रैक्शन. तो सपोज मैं यहाँ 3 लूँ तो ये 4 बड़ा होना चाहिए. तो 3 + 4 3 + 4 हो जाएगा ना. तो भी तभी 4 टाइम्स मोर हुआ कि नहीं? 3 + 4 तो 7. मैंने पूरा लिखना है न्यूमरेटर. नहीं. अभी मैं 5 लूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? 8 ना 3. डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन न्यूमरेटर. तो बीट सो रहे हो क्या सब लोग? 9. कोई 3 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, क्या बोल रहे हो? 11 लूँ तो 16. 15. 19 लूँ तो and 25 लूँ तो चलो लिखो. ये 5 ऐसे लिखो पहले सिर्फ ये डिनोमिनेटर प्लस 4 then numerator and then you write down 5 fractions. Any 5 you have to write down. जरूरी नहीं कि मैंने लिखे वही लिखो. लेकिन दिमाग चलाए कौन? आपने लिख दिया तो हमने कॉपी कर दिया. दिमाग का क्यों यूज करें? fraction is given, how will you decide? By just looking at it whether the fraction is less than 1 or equal to 1.
डिसाइड करोगे कि फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है? अभी मैंने समझाया प्रॉपर फ्रैक्शन आपको। मैम एडिशन बोलो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो प्रॉपर होगा तो क्या आएगा? 1। तो सेकंड का आंसर हुआ वो तो, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैम वो फर्स्ट में आएगा लेस देन 1। 0 पॉइंट के आगे हाँ, लेकिन वो कब आता है? 0.123 वो कब आता है? डिवीजन मुझे डिवीजन नहीं करना है। डिनोमिनेटर सेम होते तो सेम नहीं होते। बड़ा डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा यस, देन इट इज स्मॉलर देन 1। अभी हम क्या पढ़े भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े कि नहीं? तो उसमें हर एक जगह पे 0 वैल्यू 1 से लेस आई। क्यों? न्यूमरेटर वाज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर न्यूमरेटर is less than डिनोमिनेटर। ये कंडीशन होगी तो क्या आएगा? देन फ्रैक्शन इज लेस देन 1। फ्रैक्शन इज लेस देन 1 एंड फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कब आएगी? जब वो इक्वल होगा न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर। मैंने वो सेकंड क्वेश्चन में आपको समझाया कि 10/10 है तो पोजीशन कहाँ आई? 1 पे आई। आज आप लोग क्लास में हो ही नहीं, सब घूमने गए दिमाग सबके। फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट। तो बी का आंसर क्या आएगा? न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फिलअप करने आप। ये लॉजिक जो है वो दिमाग में रखोगे तो इसका आंसर इजीली लिख सकोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 1/2 1/2 डैश 1 क्या आएगा? अरे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है। लेस, ये लेस देन आएगा। क्यों? दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। चलो बी में क्या है? 3/5 3/5 बॉक्स 1 क्या आएगा? लेस देन। C. Yes. 1 box 7/8. तो ये अभी क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। D में इक्वल्स टू E में भी इक्वल। D में क्या आ गया? इक्वल। E में भी इक्वल। मैडम कंप्लीट 2005/2005 तो क्या आएगा? 1/1। नाउ आज आपको 7.2 के क्वेश्चंस कॉपी करके आना है। यस वो तो है मैम कंप्लीट क्वेश्चंस कॉपी करके आना तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यस है ना?